Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program. In last lecture, we started the revision of electromagnetic inductions. It was a revision lecture of electromagnetic induction. तो इसमें अपन ने बताया था कि electromagnetic induction इस चैप्टर है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. इससे आईआईटी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हाँ, ये बात सच है कि हर साल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट स्टिल यू कैन प्लेस दिस चैप्टर इन एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी. एंड like these lectures are about basically a sort of quick revision and some fixed few points which you should keep in your mind. Only then it will be like helpful. अगर आप ये चैप्टर पहली बार इस चैप्टर का ये लेक्चर इस चैप्टर को पहली बार पढ़ने के लिए देखना चाह रहे हैं तो ये कुछ काम के ज़्यादा नहीं होंगे आपके. सो दैट्स यू शुड कीप इन योर माइंड. एंड लेट्स कंटिन्यू हेयर विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ए फिक्स्ड लूप इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर है हमारे पास, लेट्स से देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड pointing inward and a loop is placed fixed, right? So B is the magnetic field and it's changing dB by dt. Let's say it's increasing. Then what happened to this loop actually when a loop is placed in time varying magnetic field? Clear? तो इस सिचुएशन में क्या बोल सकते हैं, देखो B is there, let's say its radius is r, so what is that? Phi is equal to what? B into pi r square. EMF induced, we can write it's minus d phi by dt, that is equal to pi r square into dB by dt. Clear? So this is EMF induced in the rod. And another thing is that this EMF induced, this is a loop, conducting loop in time varying magnetic field. So EMF is also equal to what? Minus of integral E dot dl. And this quantity will be also equal to this. Comparing it, this implies minus integral E dot dl is equal to minus, this is pi r square into dB by dt, and this is E into 2 pi r is equal to pi r square into dB by dt, and this implies E is equal to r by 2 into dB by dt. This is the induced electric field in the loop which is placed in time varying magnetic field. मतलब यहाँ पे ये हुआ कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज गिवन बाय r by 2 into dB by dt in this situation in a time varying magnetic field. Another thing is that this electric field is different, it's basically non-conservative in nature. इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव नेचर में होती है, बिकॉज हियर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली फॉर्म, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. So electrostatic electric field होती है that does not form closed loop, but this form closed loop. Another, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो वहाँ से आएगा लाइन्स लॉ से, इसकी पोलरिटी वगैरह से. तो देखो अगर B इंक्रीजिंग है इनवर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो करंट होगा वो इस तरह से होगा कि इसको अपोज करे. तो मतलब अपोज करने के लिए क्या होगा, इस तरह से बाहर की तरफ, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगी. अगर ये B डिक्रीजिंग होता तो जस्ट अपोजिट. सो दिस इज ए बेसिकली टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ अब इसके बारे में वो ये है कि जैसे कंसिडर करते हैं, लेट्स से दिस इज ए लूप, इज इट, and magnetic field is only place available in this region of, let's say, radius small a and this is radius capital R. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, because in this situation also there will be flux linked to the this capital R ring, is it? So that's why there will be, मतलब पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पे अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है या लिंक है, देन आल्सो देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन दिस रिंग. एंड इस सिचुएशन में यहाँ पर लिखेंगे E डॉट डी आर, दैट इज डी एल, दैट इज 2 पाई आर इंटू दिस इज एरिया पाई ए स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी. तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर बाई 2 आर इंटू डी बी बाई डी टी. Clear ना? So in this situation
there will be also electric field when it's limited to only small region. Similarly, अगर ये पूरे region में है magnetic field, then it will be like flux still linked will be same and exactly same, so electric field induced will be still same. इस पे कुछ अच्छे questions बनते हैं. Let me solve one problem based on it. It will help you to understand. Okay, so consider the problem. It will be visible to you on the board. A line charge lambda is wound around an insulating disk of mass capital M and radius capital R, which is then suspended horizontally as shown in the figure, and so that it is free to rotate in the central region. In the central region out to radius small a, there is a uniform magnetic field B naught. Pointing up, now the magnetic field is switched off, which causes the disk to rotate. Find the angular speed omega with which the disk start rotating. So this is the problem. Let me explain you. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमें दिया गया है वो ये है कि एक डिस्क को सस्पेंडेड लटकाया गया है like this, and disk has a like uniform magnetic field but only up to small region pointing upward like this. So uniform magnetic field B naught which is pointing, and its radius is small a, और disk का radius है capital R, mass है small a, capital M is the mass. So this is disk, and a line charge lambda is wound around this, so it's insulating disk, and this is lambda line charge. Clear? Now what is happening? थोड़े टाइम बाद ये मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ किया जा रहा है. देन दिस डिस्क विल अक्वायर सम angular velocity, and you are asked to find what is that angular velocity with which the disk will start rotating. Clear? And disk is suspended in a manner such that it's free to rotate about its axis passing through its center of mass. Clear? तो देखो अब इसको कैसे करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, let dt is the time in which B reduces to 0. Clear? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन दिस डिस्क विल बी इक्वल टू, जो एक्चुअली में कंडक्टिंग वायर वाउंडेड है उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज a square by 2r multiplied by dB by dt. This is the induced electric field in the, ultimately that's basically to the line charge, is it ring. What will happen, this electric field, first thing is we need to check its direction. तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड, फ्लक्स इज अपवर्ड, स्विच ऑफ हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रिड्यूस हो रहा होगा. तो करंट किस तरह से प्रोड्यूस होगा, करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा सच दैट कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखना चाहे. तो वो उसके लिए क्या होगा, लाइक यू कैन सी करंट शुड बी फ्लोइंग इन दिस मैनर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस मैनर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देयर विल बी फोर्स ऑन द डिस्क एंड देयर विल बी आल्सो टॉर्क. सो टॉर्क on the disk due to induced electric field, तो वो कितना हो जाएगा, I can write tau is equal to E into lambda into 2 pi r. This is the force and multiplied by distance, that is r. This is torque, and tau will be equal to what, change in angular moment, dl by dt. This implies dl by dt is equal to lambda into 2 pi r square into e, और e को क्या लिख सकते हैं, this a square by 2 capital R into dB by dt. dt dt cancel, integrating dl and dB, तो ये कितना आ जाएगा, L final minus L initial, और this is 2 gets cancel, R 1 gets, so lambda pi r into a square into change in b is equal to how much, b naught. This is 0, and this comes out to be m r square by 2 into omega is equal to pi lambda r a square into b naught.
Simplifying for omega, this comes out to be 2 pi lambda a square into b naught divided by m into r. So this is the angular velocity with which disk will start rotating. Clear? So it's a good question actually, and similar many questions can be formed, good questions on this topic. You try more problem and hope that will make sense to you about like that will clear your this topic. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ भी अपने पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग है, देयर विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कितने रीजन में है मैग्नेटिक फील्ड, कितने रीजन में नहीं है. अगर लिंक्ड है किसी भी कॉइल से या रिंग से, देन देयर विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो. नेक्स्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. Okay, so next is self inductance and inductance. ये क्या है? देखो सिंपल सा कंसेप्ट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी होंगी. सेल्फ इंडक्टेंस को समझने के लिए सिंपल सा ये समझो कि अपने पास एक लूप है, राइट, एंड व्हाट इज हैपनिंग व्हेन सम current is passing through it, there will be like magnetic flux linked to this loop because of current in this, right. और अभी अपने क्या देखा कि अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जो लिंक्ड है वो चेंज हो रहा है. जैसे इसमें क्या चेंज हो सकता है कि अगर जैसे मैं कहूँ कि करंट इसमें अगर चेंज हो रहा है, राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा. तो ये जो लूप है उसकी खुद का कुछ अपोजिशन होता है, मतलब इट ट्राई टू अपोज दैट. चेंज हो रहा है, वो नहीं चाहता कि चेंज होना, तो वो कैसे चेंज उसको रिड्यूस करता है, बाय इंड्यूसिंग सम ईएमएफ. सो मीन्स दिस लूप हैज एन प्रॉपर्टी टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू दिस. अब वो क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो किसी दूसरे सिस्टम की वजह से अगर लिंक्ड है तो उसको भी अपोज करेगा. खुद की मतलब खुद में ही करंट की वजह से अगर फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है तो उसको भी अपोज करेगा. तो दैट अपोजिंग प्रॉपर्टी को अपन मेजर करने के लिए बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. इज इट? सो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? It's a measurement of the property or measurement of you can say the opposition offered by the coil to oppose the change in magnetic flux linked to the coil due to current in itself, right. So simple terms में कहें तो यहाँ पे जैसे इसको अगर थोड़ा सा एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक सोलेनॉइड ले लेता हूँ, राइट. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. Let's say n is the number of turns per unit length. Total length of the solenoid is L, and A is the area of cross section, and current I is flowing through it, and I is changing di by dt. It's changing, let's say. Clear? तो अभी देखो क्या होगा. पहले तो अपन फ्लक्स निकाल लेते हैं फाई. तो फाई क्या हो जाएगा, B इंटू B इज द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड B कितना आ जाता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI magnetic field B into A area into number of turns and multiplied by L. So total flux is this, and this is equal to what? So mu naught into Ni into N into A into L, right. And this phi flux is proportional to what? I can add this flux is proportional to I current in it. Clear? And this proportionality constant is replaced by L, that is called phi is equal to Li. So this is equal to that, and comparing it, mu naught into N square into A into L into I gets cancelled, and L is coming out to be mu naught into N square into L into A. So first thing is this L is called self inductance. And it's a geometrical parameter. Basically it's a geometrical parameter, does not depends on current, not depends on current, depends on the medium inside, is it?
or medium filled in solenoid or coil. That is, तो L यहाँ पे आया था, L is equal to mu naught into N square into A into L. This is the self inductance of solenoid. सिंपल टर्म्स क्या है कि यहाँ पे इसी के थ्रू करंट फ्लो पास कर रहा है. ये करंट की वजह से क्या होगा, इसमें फ्लक्स लिंक होगा. ये फ्लक्स अगर चेंज होता है बाय चेंजिंग करंट, तो ये जो कॉइल है वो कुछ अपोज करेगा, अपोजिशन ऑफर्ड करेगा, and that opposition is measured in terms of self inductance, right? वो प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, phi is equal to this and phi is directly proportional to I, and this I proportionality constant is replaced by L, and this L is called self inductance. Mathematically it comes out to be this. क्लियर? तो ये वही मेजरमेंट है उसी प्रॉपर्टी का जो इसमें कोई भी अगर चेंज होते हैं उसको अपोज करे. क्लियर? एंड इस यूनिट इज ऑफ L or inductance is Henry, and it's a scalar quantity. क्लियर? तो ये क्या होगा, लाइक EMF जो इसमें इंड्यूस होगा, मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइन डी, दिस इज व्हाट डी फाई बाई डी टी, और डी फाई क्या है, एल डी आई बाई डी टी, सो दिस इज माइनस एल डी आई बाई डी टी. अब यहाँ पे आता है लाइक इसकी पोलरिटी वगैरह वो सब चीज़ें कैसे डिसाइड क्या रहे. तो देखो इंडक्टर क्या है, एक कॉइल है बेसिकली, और कॉइल की प्रॉपर्टी है. तो इंडक्टर को बोल सकते हैं कि दिस इज ए कॉइल, इज इट, दैट इज कॉल्ड इंडक्टर. इसका जो सिंबल है दिस इज इक्विवेलेंट टू, अपन सर्किट में इंडक्टर को इस तरह से लिखते हैं, इंडक्टर or self inductance, that's denoted in this manner. So this is inductor having L, and now the EMF induced, so this is, let's say, inductor, okay, and A, this is B, current I is flowing through it, and let's say I, it's di by dt, it's positive, means increasing. Clear? तो उस सिचुएशन में देखो क्या होगा, जो EMF इसके तरफ इंड्यूस होगा दैट विल बी लाइक इक्वल टू व्हाट, माइनस एल डी आई बाई डी टी. अब वो क्या होगा, ये करंट इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स इसके थ्रू क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, तो वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. सो द पोलरिटी विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पे लिख सकते हो वी ए, यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो इट्स बी बी माइनस वी ए इज कमिंग आउट टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. क्लियर? दूसरी टर्म्स में कहूँ तो, और similarly same coil or inductor, current I, this is point A, this is point B, but this case di by dt is decreasing, means negative. Clear? Decreasing or negative. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इसमें फ्लक्स है उसको क्या होगा, कांस्टेंट रखना चाहेगा, so it will try to increase it. The polarity will be like this. इस सिचुएशन में वी बी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू डी एल डी आई बाई डी टी. क्लियर? इन जनरल टर्म्स, इन जनरल टर्म देखो हमेशा जब ये सर्किट में अभी कभी अपन यूज कर रहे हैं, केवीएल वगैरह लगा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो मैं आपको एक जनरल टर्म बता देता हूँ, दिस इज ऑलवेज वैलिड. Current is moving in this direction, flowing in this is point B and A. So doesn't matter whether current is increasing or decreasing, always in the direction of current, in the direction of current, we can write potential difference VB minus VA is equal to minus L di by dt, where di by dt need to be substituted with proper sign. Di by dt need to be substituted with proper sign. जैसे मैं बताता हूँ, हमें ये पता चल गया कि अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये मैग्नीट्यूड ये होता है, इंक्रीजिंग है तो ये मैग्नीट्यूड मतलब इधर पोलरिटी इधर नेगेटिव रहता है. क्लियर? अब देखो ये जनरल टर्म में लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिसन इट.
So if I is increasing means di by dt is positive. तो di by dt पॉजिटिव है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, di by dt is पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये क्या आ गया माइनस एल। तो इस सिचुएशन में देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है इसको। क्लियर? अगर I इंक्रीजिंग है तो ये L di by dt क्या होगा, पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग। सिमिलरली अगर I डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या होगा, जो di by dt क्वांटिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए शुड बी पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग है। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ में आया? मतलब ये है जनरल टर्म्स, मतलब लाइक देखो स्पेशल केस ये है कि अगर यहाँ पे करंट इंक्रीजिंग है तो ये क्या करेगा, इसको घटाना चाहेगा सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, तो पोलरिटी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा, अपोज करे इसको, तो प्लस इधर इधर माइनस, सो दैट ईएमएफ इज ट्राइंग टू रिड्यूस द करंट। क्लियर ना? क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जाता हूँ तो ये क्या होगा, लो माइनस हाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेगेटिव। वी बी माइनस वी इक्वल माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे देख सकते हैं डी आई बाई डी टी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ओवरऑल इट विल बी नेगेटिव, मतलब कि यहाँ की पोलैरिटी और पोटेंशियल कम होगा इसके कंपेरिजन में। अगर ये डी आई बाई डी टी डिक्रीजिंग हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, डी आई बाई डी टी क्या होगा, एक नेगेटिव में होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, ये इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा करंट को, तो वी बी माइनस वी ए विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखने का। क्लियर? अब मैं जनरल टर्म्स में लिखता हूं तो वो ये है, मतलब करंट की डायरेक्शन में मैं हमेशा लिख सकता हूँ वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब अगर ये आई इंक्रीजिंग हुआ तो ये क्या क्वांटिटी क्या रखूंगा मैं, डी आई बाई डी टी विल बी पॉजिटिव। याद आया? डी आई बाई डी टी विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए विल बी ए नेगेटिव, मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल कम होगा अगर आई इंक्रीजिंग है, मतलब डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर आई डिक्रीजिंग है तो मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा, डी आई बाई डी टी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव वन मोर नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बी माइनस ए ऑटोमेटिकली हमारा पॉजिटिव आ रहा है। सो ये दिस इज अबाउट द साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ सर्किट। लेट मी शो यू वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट, सिंपल केस। Okay, so consider here simple case. One part of this complete circuit is given to you. So here we have inductor of inductance 2 Henry, resistor 4 ohm, and one battery connected 5 volt, and A and B are these 2 points, and you are asked to find VA minus VB if I is equal to 2 ampere, and such that A case di by dt is 0 means I is constant, di by dt is plus 1 means I is increasing, di by dt is minus 1 means I is decreasing. क्लियर ना? तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, मतलब तरीका आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे एक सर्किट में हम जाएंगे तो पोलैरिटी वगैरह, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह उनको कैसे कंसीडर करना होगा। तो देखो यहाँ से चलते हैं KVL से, वी ए माइनस ये क्या होगा, मैं लिखूंगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। मैं जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ अभी, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, और ये प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट, वी बी। क्लियर? हमें पूछा क्या गया है, वी ए माइनस वी बी, वी आर आस्क्ड टू फाइंड वी ए माइनस वी बी। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ए केस। तो ए केस में क्या हो रहा है, आई अपन को पता है और डी आई बाई डी टी क्या है, 0 है। सो ए केस के लिए वी ए माइनस ये क्या क्वांटिटी क्या हो गई, 0 माइनस आई कितना है, 2 इंटू आर इज इक्वल टू, सो इट्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 इज इक्वल टू वी बी, एंड ये कितना आ गया, 8 माइनस 5 मतलब माइनस 3, सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू व्हाट, 3 वोल्ट। आई होप इट्स शुड बी क्लियर। नेक्स्ट केस वी ए माइनस, अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, आई इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव है, तो मैं इसको क्या रखूंगा, डी आई बाई डी टी को विद लाइक साइन पॉजिटिव रखूंगा, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू डी आई बाई डी टी इज 1 माइनस आई इज 2 multiplied by 4 plus 5 is equal to VB। तो यहाँ से अपने पास VA minus VB कितना आया, दिस इज 2 plus 5 8 10, आई लाइक माइनस का 10 plus 5, so it's coming out to be 5 volt। C केस यहाँ पे है VA, अब DI by dt is minus 1 decreasing, so DI by dt is minus 1, so it's basically how much, 2 into minus 1, 2 into minus 1 and minus I, that is 2 into 4 plus 5 equal to 0।
तो यहाँ पे क्या आ गया ये अपने पास, दिस इज वी ए प्लस 2 माइनस 8 प्लस 5 इक्वल टू नॉट 0 वी बी। सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, दिस इज वी बी एंड दिस इम्प्लाइज वी ए माइनस वी बी इज कमिंग आउट टू बी, दिस इज 5 प्लस 2 7 एंड माइनस 8 दैट्स कमिंग आउट टू 1 वोल्ट। सो इस तरह से अपन सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह कंसिडर कर सकते हैं, केवीएल वगैरह लगा सकते हैं, राइट। Okay, so next is energy stored in inductor. Energy stored in inductor. Now consider here, so let's say this is one inductor and I is the current passing through it, and di by dt is basically positive, means increasing. Clear? Now L is the inductance. Then what I can write? Potential drop across this will be what? It will be polarity will be like this, and V I can write A, this is B, so I can write VA minus VB is equal to what? L di by dt. Right? Another thing is, we have seen actually if polarity is like this and current is entering into the positive terminal of the battery, then what happened? Actually battery act like a resistor, is it? Or battery, this case battery consume the power, right? And exactly same thing happening here also. This is acting like a battery, but positive terminal, negative terminal, and current is entering into the positive terminal, so means it's consuming the power, means it's storing the energy. So actually inductor stored energy, is it? So inductor is storing the energy. Clear? And then I can write what? Power is equal to what? I into E, potential drop, that is V, is it? That is power. So this is I into L di by dt. So energy stored is equal to power multiplied by dt, and that is equal to I into di by dt into L into dt gets cancelled. So this implies, यहाँ से अपने पास आता है E integrating it, integral L, this is I di 0 to I, so energy stored is equal to L I square by 2. This energy stored in the form of magnetic field. जो इंडक्टर है वो बेसिकली एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, और यहाँ पे जो एनर्जी पर डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस कम्स आउट टू बी एक्चुअली B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट. This is energy density of magnetic field, and we can check it, it's equal to like exactly comes half Li square. So that is the energy stored in an inductor. इसमें क्या है कि अगर एक इंडक्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज ए लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं. लेट्स से दिस इज ए इंडक्टर कनेक्टेड एंड दिस, सो इनिशियली current T is equal to 0, this is R, L and E, right? And current in the circuit is 0. Switch is on at T equal to 0. Current will start growing in the circuit, and इंडक्टर हैज़ प्रॉपर्टी, बिकॉज ये क्या करता है, अपोज करता है. तो जैसे ही थोड़ा सा करंट बढ़ना चाहेगा ये उसको अपोज करेगा. सो इन ए इंडक्टर करंट कांट ग्रो ड्रास्टिकली, इट ग्रोज स्लोली एक्चुअली, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, करंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अप टू इट्स नॉट लाइक अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट. And we derive it actually, so I'm writing the result here, actually we get directly, so I comes out to be actually E
by r 1 minus e raised to power t over tau, and where tau is equal to L by R, right? So this is actually growth of current, and finally it if I plot this I versus t graph, it comes like this. This is a I naught maximum, that is E by R. So maximum current in the circuit will be like finally E by R, and this is, and tau is called time constant. Tau is called time constant of the circuit. Similarly यहाँ पे रहता है कि अगर पहले से एक्ट लाइक जो इंडक्टर है वो क्या है, चार्ज है, आई मीन लाइक इट इज हैविंग मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। दूसरी बात, इस ग्राफ से हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एट टी इज इक्वल टू 0 आई इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आई इज इक्वल टू ई बाई आर। मतलब बात ये है कि जो सर्किट है उसमें t इज इक्वल टू 0 पे करंट क्या हो रहा है, सर्किट में 0 है। तो जो इंडक्टर है इट्स इक्विवेलेंट टू व्हाट, ओपन सर्किट एट t इज इक्वल टू 0। इन्फिनिटी पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इंडक्टर लगा भी है इसमें, बिकॉज करंट इज सिंपली ई बाई आर। तो मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो इंडक्टर है दैट्स इक्विवेलेंट टू ए कंडक्टिंग वायर, राइट। दिस इज, एंड दैट इज टाइम कांस्टेंट। और यहाँ पे अपने पास एक टाइम कांस्टेंट पे करंट उसका लाइक 62 पॉइंट समथिंग लाइक 8% हो जाता है, सो लाइक दैट। तो ये अपने पास ग्रोथ ऑफ करंट है। तो यहाँ पे किसी भी टाइम पे तुम्हें करंट पूछा जा रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ऑल दैट यू शुड बी इन पोजिशन टू आंसर। सिमिलरली डिके ऑफ करंट इन इंडक्टर, तो यहाँ पे है कि अगर पहले से ही अपने पास एक इंडक्टर है विच इज़ लाइक हैविंग मैक्सिमम करंट एंड इट्स नाउ कनेक्टेड to a resistor, so this is L and its I naught is the maximum current R, and now switch is connected at t equal to 0. तो अभी इस सिचुएशन में क्या होगा, करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड हियर वी राइट I is equal to E naught, mean like I naught into e raised to power minus t over tau, and again tau is equal to L by R, and in this situation your current will keep on decreasing like this, I versus t। तो यहाँ पे एनर्जी, ये जो इंडक्टर है वो एक बैटरी की तरह काम करता है। These things you should remember because कि स्टेडी, इसको अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है बेसिकली t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कि काफ़ी टाइम तक इंडक्टर को सर्किट में कनेक्ट करके रखा गया है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सर्किट में जो इंडक्टर है वो एक वायर की तरह ट्रीट किया जाएगा और वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा। सो दिस इज ग्रोथ ऑफ करंट इन द इंडक्टर एंड डिके ऑफ करंट। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडक्टर को भी हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को करते हैं। These things, these relations, these are important, you should remember them, and one more thing about it I will tell you, just wait, जो कि हमें काफ़ी हेल्प करती है मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो जो पॉइंट था, हाँ, कि कभी कभी एक बात ये है कि लाइक हमें सर्किट हैं वो कभी कभी थोड़े से कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते हैं, और फिर वहाँ पर भी तुम्हें किसी सर्किट में लाइक किसी इंडक्टर के थ्रू करंट या फंक्शन ऑफ टाइम या इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, तो लेट्स कंसीडर दिस इज ए बैटरी, वन रजिस्टर कनेक्टेड हियर, अनदर रजिस्टर कनेक्टेड, एंड रजिस्टर एंड इंडक्टर लाइक दिस, ओके, एंड स्विच इज दिस which is closed at t is equal to 0, EMF R, 2R and L, and let's say this is R. So here also you are asked to find current through the inductor as function of time. Current through L as function of time is asked. Clear? So let's see it. तो यहाँ पे देखो, एक तो तरीका रहता है हमारे पास कि हम इसमें कंसिडर करें KVL, इसमें KVL सॉल्व करें और
यहाँ पे जो करंट है उसको डी आई बाई डी टी एंड वी राइट इट इक्वेशन एंड देन वी गो फॉर इट। वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है बेसिकली। तो हमारे पास दूसरा मेथड होता है कि हम क्या करें, इस सर्किट को हम रिड्यूस कर लेते हैं एक इफेक्टिवली दिस ई इक्वलेंट, आर इक्वलेंट एंड एल आर इक्वलेंट। तो यहाँ से टाउ आ जाता है हमारे पास एल बाई आर इक्वलेंट, टाउ आ गया और ये ई इक्वलेंट आ गया। तो करंट इसमें लिख देते हैं ई बाई इक्वलेंट डिवाइड बाई आर इक्वलेंट इंटू 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर टी बाई टाउ। ये हमारे पास सीधा सीधा यहाँ का करंट आ जाता है। अब ये ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट क्या होता है ये आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये आप बहुत टाइम सेव कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। क्लियर? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इंपॉर्टेंट मेथड होता है। तो देखो ई इक्वलेंट कैसे निकालते हैं। ई इक्वलेंट निकालने के लिए तुम्हें करना क्या है, ओपन सर्किट द इंडक्टर एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट। ओपन सर्किट, कैलकुलेट ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। मतलब इसको मैं इंडक्टर को ओपन सर्किट कर देता हूं तो ये देखो तुम्हारे पास सर्किट बच गया, ये बाकी सब कनेक्टेड होगा। दिस इज 2R R R एंड E। तो अब मुझे इनकी दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्लियर? तो देखो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, राइट। सो दिस इज, इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं, यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा सिंपल। तो I कितना आ गया, I इज इक्वल टू E बाई 3R। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। तो E इक्वलेंट में लिख सकता हूँ, E इक्वलेंट इज इक्वल टू व्हाट, E बाई 2R मल्टीप्लाइड बाई 2R। सो 2E बाई इट विल बी 3R, सो 2E बाई 3। तो E इक्वलेंट आ गया। R इक्वलेंट के लिए क्या करना होता है, R इक्वलेंट के लिए, R इक्वलेंट हमें चाहिए होता है शॉर्ट सर्किट द बैटरी, ओपन सर्किट इंडक्टर एंड कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी R इक्वलेंट अक्रॉस इंडक्टर। सो शॉर्ट सर्किट बैटरी, right, find R equivalent and find R equivalent across inductor। क्लियर? तो यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट बैटरी, दिस दिस एंड दिस एंड दिस, 2R R एंड R, और ये अपने पास इसके अक्रॉस निकालना है। देखो ये क्या हो गए, दोनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में कितना हो गए, 2R बाई 3 और प्लस R इन सीरीज, तो कितना आ गया 5R भी। तो R इक्वलेंट आ गया अपने पास 5R बाई 3, 1 बाई 2R प्लस 1 बाई R, तो इट्स 2R बाई 3, तो 2R बाई 3 प्लस R बेसिकली 5R बाई 3। तो अपने पास क्या आ गया, R इक्वलेंट आ गया, E इक्वलेंट आ गया। तो मैं अब इस सर्किट को, ये जो मेरा सर्किट था इसको देखो मैं लिख सकता हूं, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू ये, और इसमें ये बैटरी R equivalent, L equivalent, and this switch is actually closed at t equal to 0. This is how much, 2E by 3, this is 5R by 3, तो यहाँ पे और ये L, तो I कितना आ गया 2E by 3 डिवाइड बाई 5R by 3, 1 minus e raised to power minus t over tau, tau is equal to L by R, so this is L by R, L into 5R by 3, तो ये आ गया अपने पास 3 gets cancel, I is equal to 3E by 5R, 1 minus e raised to power 5RT by 3L. Check the calculation. तो ये है तरीका, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, इट विल हेल्प यू टू सेव ए लॉट ऑफ टाइम इन योर एग्जाम इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड एंड इफ क्वेश्चंस आर कमिंग बेस्ड ऑन
इट एक्चुअली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे तरीका ये रहता है कि इस सर्किट को, ये फिर भी सिंपल है, और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उनको भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सा पार्ट है वहाँ पे एक ई इक्विवेलेंट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो, तो सिंपल ये सर्किट आ जाता है। और इसका अपन लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट 1 माइनस टी बाई टाउ, एंड टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हमारे पास इवन ग्रोथ और डिके कोई सा भी सर्किट में हम करंट निकाल सकते हैं across inductor as function of time. Clear? So this is one method, and about getting solving different or complex problem based on inductor. Okay, so कभी कभी इसमें like combination of inductors in, तो यहाँ पर भी इंडक्टर्स को भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, सो हियर आल्सो सीरीज कॉम्बिनेशन and parallel combination. तो series combination में वही two inductors connected in this manner, N2 and L1, L2. Then in this situation, L equivalent is given by simply L1 plus L2. It's like similar to your resistance. तो इस केस में क्या होगा, इंडक्टर अगर सीरीज में है then it will be like current will be same, potential difference will be different. तो यहाँ पे करंट हमारा क्या होगा, जो भी होगा वो सेम होगा, I और di by dt will be same. So V1, V2 potential difference, V1 we can write minus L di by dt L1, and V2 will be minus L2 di by dt. तो इस तरह से अपने पास V1, V2 अलग अलग रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही एग्जैक्टली चीज़ें। तो यहाँ पे here potential drop will be same but current I, so it will be like I1 and I2, and I1 I2 will be also different, but potential difference, this is L1 and L2. So in this situation L equivalent is equal to L1 L2 divided by L1 plus L2, right? So remember that. And next come here actually your mutual inductance. दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो अभी क्या हो रहा था यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस में, एक कॉइल उसमें करंट पास हो रहा है और जो करंट है वो चेंजिंग है। तो जो चेंजिंग करंट होगा मतलब खुद ही सेम कॉइल में ही करंट पास होने से जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। तो ये कॉइल उसी को अपोज करता है। अपोज करने के लिए जो प्रॉपर्टी है, जो मेजरमेंट है, उसको अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस बोल दिया। क्लियर ना? और इसको मेजर करने के लिए अपन ने डिफाइंड L, phi is directly proportional to Li and L is, तो अपन लिख सकते हैं L is self inductance, L is equal to phi by I. क्लियर? म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या हो रहा है कि अपने पास दो कॉइल होती हैं, राइट? सो लेट्स से दिस इज कॉइल 1 and there is another coil 2. तो अगर इसमें कुछ करंट I पास होगा, I1, because of current in this coil there will be some flux linked to this next coil, is it? So flux in coil 2 due to current in coil will be proportional to what? Current in coil 1, ज़्यादा current ज़्यादा flux. This proportionality constant will be replaced by, so phi 2 1 is replaced by M 2 1 I1. This M is called mutual inductance. Of coil. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये कॉइल इसके थ्रू जो फ्लक्स लिंक्ड है वो किसकी वजह से? करंट इन कॉइल 1 की वजह से। इसको भी अपोज करेगा। अगर ये करंट चेंज हो रहा है तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो चेंज होगा, तो ये कॉइल उसको भी अपोज करेगा। तो वो जो अपोज करेगा उसको अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो कॉइल हैं, एक कॉइल में करंट की वजह से दूसरे कॉइल में जो करंट फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है वो चेंज हो रहा है जब इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है। तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है वो क्या, सेकेंड कॉइल है वो क्या करेगा, इसको अपोज करता है। उसी को अपन मेजर कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म्स में। तो ये डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, जैसे एक वायर दे दिया गया, एक लूप दे दिया गया,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस की जरूरत पड़ रही है, कभी कभी तो तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस से हमें कुछ आगे सॉल्व करना होगा प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे होता क्या है, हम इसकी वजह से अगर इसमें से वायर में फ्लक्स निकाल ही नहीं सकते, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। उसके लिए बेहतर होता है कि जो सिस्टम हम सॉल्व कर सकते हैं उससे हिसाब से चलें। मतलब वायर की वजह से इस लूप से तो फ्लक्स निकाला जा सकता है, तो उसको मैं एम आई लिख दूंगा, दैट आई विल गेट म्यूचुअल इंडक्टेंस। दूसरी बात ये रहती है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एक पेयर के लिए कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कॉइल 1 में करंट है और कॉइल 2 में फ्लक्स लिंक है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 है, और कॉइल 2 में करंट है, कॉइल 1 में फ्लक्स लिंक है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 है, तो वो दोनों अलग अलग कभी नहीं हो सकते। म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी एक ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, वो डिपेंड करता है कि हाउ मच फ्लक्स इन कॉइल 1 इज लिंक्ड टू कॉइल 2। क्लियर। तो वो कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उनके ओरिएंटेशन पे कि कॉइल्स को कैसे रखा गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली होती हैं। कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चंस भी इन पे पूछ लिए जाते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम फ्लक्स वगैरह, कौन सी सिचुएशन कौन सी कंडीशन, तो वो आपको अगर समझ में आ रही हैं ये चीज़ें लॉजिकली, आपको मालूम है कि क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, मतलब कैसे चीज़ें मैटर करती हैं, देन यू विल बी इन पोजिशन टू आंसर दैट ईजिली। क्लियर ना। इफ़ यू डोंट नो इट देन इट विल बी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो रहा है कि एक कॉइल में करंट की वजह से दूसरे कॉइल में फ्लक्स लिंक्ड है। अब यहाँ पर देखो एक हमारे पास बड़ा ये रिंग है और मैंने यहाँ से काफ़ी दूरी पे एक छोटा सा एक रेक्टेंगुलर मतलब एक ये स्क्वायर फ्रेम रख दिया। अब मैं इनके बीच में पूछ रहा हूँ लाइक इसमें करंट आई और यहाँ से तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया है, या फिर तुम्हें पूछा गया है कि ये स्क्वायर लूप में करंट आई की वजह से इसमें फ्लक्स कितना लिंक होगा। स्क्वायर लूप छोटा सा है, साइड ए है, इसकी रेडियस आर है, ये डिस्टेंस को मान के चलो डी ले लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ये है करंट आई इज पासिंग through this square loop which is placed on the axis symmetrically, right, so that both axes coinciding but at a distance d, and d is quite like you can say d is bigger than r। तो अभी तुम्हें पूछा गया है कि स्क्वायर लूप में करंट की वजह से ये वायर में फ्लक्स कितना होगा। अब इसको अगर आप सीधा सीधा सॉल्व करते हैं देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम एक्चुअली, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालोगे वो कॉम्प्लेक्स आएगा एक्सप्रेशन, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे दैन इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। लेकिन इसको बहुत आसान बनाया जा सकता है। कैसे कि हम इसकी वजह से इस पॉइंट पे स्क्वायर लूप में फ्लक्स निकाल लेते हैं, राइट, अंडरस्टैंडिंग इट। तो इसमें करंट मैंने कुछ आई मान लिया, तो इसकी वजह से बी कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू दिस इज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। तो ये क्या आ गया बी। तो फाई इन स्क्वायर लूप ड्यू टू करंट इन रिंग इज इक्वल टू व्हाट, b into area, so this is mu naught into I into r square divided by 2 into r square plus d square power 3/2 multiplied by a square। क्लियर। तो ये क्या आ गया, एंड दिस आई कैन राइट m into I gets cancel, तो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसमें करंट, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया विल बी द फ्लक्स आई कैन राइट एम आई, बिकॉज ये क्या है, इस कॉइल में करंट की वजह से इस कॉइल से फ्लक्स है, तो इसको एम आई लिख दिया मैंने। आई गेट्स कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। एम इज कमिंग आउट टू बी दिस इज म्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। अब फ्लक्स थ्रू ring due to current in square loop, वो मैं लिखता हूँ phi ring through ring due to current in square loop, that will be equal to m into I in square loop, and this comes out to be mu naught into r square into a square divided by 2 into r square plus d square power 3/2 multiplied by current in that square loop is I. This is the flux
through ring because of current in square loop and this is your problem. तो ये भी आसान कर देता है म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस तरह से, अगर अपन प्रॉपरली चाहें तो। यहीं पे अगर आप इसमें करंट लेकर के फिर ये सॉल्व करते हैं, इसमें फ्लक्स निकालना, दैट विल बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होंगी। and this is all about your energy, mutual inductance and inductance, self inductance, series parallel combination, and that's all basically, is it? Okay, so this is all about revision lecture of electromagnetic induction. I hope you should be understanding the things and try more problem based on it. If you're solving more problem, you will feel more confidence. That will only help you in building confidence and is it solving different types of problems. So that's all. Thank you so much.